अच्छा वहाँ थर्ड ईयर का लेक्चर था ना, सामने था। हाँ जी बात। वहाँ अक्सर बच्चों को बात स्लाइड नहीं मूव करती, आवाज नहीं जा रही, पता नहीं। हम तो मैं तो फिर कुछ नहीं करता, मैं तो बोल बाल के चला जाता हूँ मेरी तरफ। देखिए जी, बात ये है कि ये हमें तो ऑनलाइन सिस्टम को इस उम्र में तो समझ नहीं है इतनी, और अगर हम करेंगे भी बस हो जाएगा, ये वैसे ही होता है। सर स्टार्ट एक मिनट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मास्क वगैरह उतार हैं? मास्क वगैरह उतार लें तो मास्क क्लियर चल हाँ रही मैंने फुल की हुई है। नहीं, वैसे भी अगर आप ने लगाया, मैं तो कोई बात नहीं, दो ही तो बंदे हैं, किसी और को ना आने दें। अब मैं आपके लिए खतरा हूँ, आप मेरे लिए, लेकिन दोनों में से अगर एक ने लगाया हुआ हो तो मुझे एनवायरनमेंट से हो सकता है आपकी सेफ्टी है। ठीक है कैमरा ये थिंक सो करेक्ट। स्लाइड में कवर ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज वी आर स्टार्टिंग विद certain diseases which are part of endocrine system. All of you know, I'm sure, that insulin is a molecule which is produced by beta cells of pancreas. So the pancreas has endocrine functions as well as exocrine. The topic for 2 days is only on endocrine functions of pancreas. There are many cells in the pancreas which are present in the form of islets. But one thing important is sometimes the disease's diagnosis is given in the end. But as this disease, diabetes mellitus, is consisting of 2 words, that is diabetes and mellitus. Diabetes is the word which means siphon, and mellitus is the word which means sweet. Siphon because there is free flow of water, or you can say there is polyuria or increased urinary output. So volume of urine output is more, or frequency is something different, but frequency also increases and volume increases. You call it polyuria. So siphon means increased urinary volume, or just like a siphon. So there is excessive urinary outflow. And second, the word is diabetes. The word is mellitus. Or mellitus, sometimes people they speak, whatever you pronounce. Diabetes mellitus in our Asian culture, we usually say diabetes mellitus. Mellitus is the word which means honey or sugar. So the taste of urine is sweet. So the name derived. 2 words, 2 meanings, and 2 things important. One is polyuria, the other is sugar. That means the polyuria is because of increased concentration of glucose in urine, or you can say urine is hyperosmolar and glucose excretion की वजह से urinary volume भी बढ़ जाता है. Normally there is no glucose found in the urine if GFR is normal, if glomeruli are functioning normal. So diabetes mellitus, as I have told you, that there is polyuria and it's sweet. So urine is sweet. How do you diagnose it? So the first thing is the diagnosis. We usually teach that where you should place the patient. If you have done blood sugar level of a patient or any other investigation, which we will just talk about in this session. तो कोई भी investigation जो आप करवाते हैं उससे the important thing is for as a pathologist or rather as a physician or clinician, the important thing is should the person be placed or declared as you are normal, or the person should be placed as you are a case of diabetes mellitus. And the WHO
criteria is a little different from American Diabetic Association and even International Diabetic Association, that is called IDA. ADA is American Diabetic Association, WHO is World Health Organization. It is just difference at one point only, or 2 points rather, I would say. Naturally, you need to know whether the person should be counted as normal or diabetic. तो नॉर्मल के लिए जो FPG means fasting plasma glucose. This is WHO criteria that if it is lesser than 108 milligram per deciliter or equal to 108 milligrams per deciliter, you can safely say that the patient is not a case of diabetes mellitus and place him in the group of normal persons. Or instead of fasting glucose, if the person has 2 hours after 75 grams, this is wrongly written milligram, it's grams. Grams of glucose load, if the sugar done after this is equal to or lesser than 144, even then you say that the person is normal. So random sample, postprandial sample, any type of random sample, any times taken, which is not related to diet, irrespective of its relationship with diet. If a sample is taken and you do random sampling, this should be lesser than 144, this should be less than 108 if you want to place the person in this group. Otherwise, vice versa, if fasting plasma glucose is more than or equal to 126 milligrams per deciliter or postprandially or after glucose load, it is 198. These looks to be odd figures. I'm telling you why they look odd, because the international world is not expressing these values now in milligrams per deciliter. Yeah, slide बंद हो गई. So it's not. ये सोबिया अली कुछ कहना चाह रही है, क्या करूं यहाँ क्लिक कर दूं? उससे बात हो सकती है? अच्छा चलो, okay. So I was talking that fasting plasma glucose or 2 hours postprandial, if it is more than 126 or if it is equivalent to 126, you can place the person in. You can think of that the person is diabetic. अभी मैंने जो लफ्ज यूज किया है कि you can think of, you have you received an information but you have not given a decision. Similarly, this is 198. Odd values इसलिए हैं कि international world has ये conventional units हैं, उन्हें they have changed it to SI unit. Conversion factor from conventional unit to SI unit is 18. 18 को अगर 108 पे divide करें, this is 6 millimoles per liter. This is 18.6 R18, or this is 8 millimoles per liter. So fasting plasma 6 से कम होना चाहिए if you are talking about millimoles per liter in latest books or books which are giving international units or standard international units or SI units. तो ये 18 कहाँ से आया है आपको पता होना चाहिए. जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 180, दैट इज C6H12O6. मॉलिक्यूलर वेट पे अगर जाएं तो 180. 18 इसलिए है कि because this is deciliter and this is liter. Liter is 10 times more than deciliter. अगर deciliter में होगा तो 10 times कम आप. So 18 is the factor because of molecular weight of. तो ये जो ऐसे यूनिट्स हैं वो मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड होते हैं. बहरहाल द थर्ड थिंग इज you can say it's random, postprandial, or any time if a sample is taken and glucose analysis is done or received from the laboratory or you do it yourself on glucometer. तो values अगर ये 6 मिलीमोल पर लीटर और 8 मिलीमोल पर लीटर से नीचे हों, दो जो आपको बातें बताई हैं फास्टिंग की और 2 घंटे के बाद की, तो आप नॉर्मल कहेंगे. अगर 126 से ज्यादा है, 126 मींस 7 मिलीमोल्स पर लीटर और 198 मींस 11 मिलीमोल्स पर लीटर.
What about the window between that? तो ये अगर आप मिलीग्राम की विंडो हम बात कर लेते हैं, बिकॉज इन पाकिस्तान यूजुअली वी एक्सप्रेस इन मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर। तो अब मैं मिली मोल्स की बात नहीं करूंगा भाई, यू कैन कन्वर्ट दैट बाय डिवाइडिंग 80। और अगर आपको कोई ग्लूकोमीटर या कोई घर में इस्तेमाल कर रहा हो और वो मिली मोल्स पे उसकी सेटिंग हो, तो आपसे कोई पूछे कि ये मिलीग्राम्स में कितना है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दें। और अगर मिलीग्राम में है और वो मिलीमोल में पूछे 18 पे डिवाइड कर दें। दैट्स द ओनली डिफरेंस। You can you should have a knowledge about that. But now I talk about only milligrams per deciliter. So lesser than 108 fasting means normal, more than 126 means diabetes. I'm again saying you can think of diabetes. अभी डिसीजन मैं क्यों नहीं दे रहा वो अभी बात कर। What about 106 to 126? That is called a window period. Or people sometimes use pre-diabetics or potential diabetics. लेकिन अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और WHO दोनों इस पे मुत्तफिक हैं कि we should not say you are pre-diabetic or you are potential diabetic, because that will induce a stress in the patient. और stress से anti-insulin hormones, they can also lead to a rise in blood sugar. So sugar level को वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है normoglycemic, hyperglycemic and intermediate glycemic. And this intermediate glycemic or level of glucose we call glycemia. So glycemia का level अगर fasting is between 108 to 126 milligrams per deciliter, one can say that there is an impairment of tolerance of glucose by the person. And if there is an impairment, you go for further investigation. इसी तरह यहाँ पे भी एक there is a big window zone. Remember, there is a very small window zone of only 1 millimole or 18 milligrams per deciliter fasting sample. But random चूंकि आपने खाने पे डिपेंडेंट है, एक्सरसाइज अगर की हो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। 6 घंटे के बाद आप नाश्ता या खाने के बाद टेस्ट करवाएंगे, उसकी वैल्यू और होगी। रज के मिठाई खा के करवाएंगे तो उसकी वैल्यू और होगी। तो इसलिए द विंडो जोन इज अ बिग जोन। यू कैन थिंक 144 से लेकर 8 मिलीमोल से लेके 11 और 54 मिलीग्राम का इसमें फर्क है विंडो जोन का। तो यहाँ पे another very important test which is that is HbA1c. We will talk about it a little later. Normally it should be lesser than 5.7% or equal to, and if it is more than 6.5 you place it in diabetes. So red color इसीलिए show किया हुआ है कि blood glucose level normal, and this white is the window period. Same is true for HbA1c, which is also called glycosylated hemoglobin. 5.7% जो normal है और 6 point के दरमियान जो value है वो that is a window zone. That it means you are intermediate glycemic. तो आप नॉर्मल भी हो सकते हैं अगर इफ यू हैव अ गुड कंट्रोल ऑन डाइट और यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट डाइट एंड योर हैबिट्स, एंट्री हैबिट्स की बजाय स्टार्ट वॉकिंग एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड डिपेंड्स ऑन एज कि एक्सरसाइज कौन सी करनी है। बट डाइट कंट्रोल इज अ गुड कंट्रोल। और हाउ मच शुगर शुड बी टेकन, और शुगर तो हर चीज में मौजूद है लेकिन एक्स्ट्रा शुगर छोड़नी पड़ेगी, चीनी छोड़नी पड़ेगी आपको चाय में। कुछ सिमिलरली मिठाई और एक्स्ट्रा शुगर छोड़ें सबसे पहले। उसके बाद हो सकता है आपको चपाती और नान और रोटी भी कम खानी पड़े, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करनी पड़ेगी। सो सेडेंटरी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो दिस विंडो जोन में से पेशेंट नॉर्मोग्लाइसेमिक भी हो सकता है और डायबिटिक भी हो सकता है। तो दिस इज अ प्लेस वेयर अदर इन्वेस्टिगेशन आर। मैंने कहा था अभी WHO और ADA का क्राइटेरिया थोड़ा सा 2-3 जगह पर फर्क है। मसलन वन क्राइटेरिया इज कि वो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज दे से इट शुड नॉट बी मोर देन 100। सो वो जो पोटेंशियल डायबिटिक्स या प्री डायबिटिक्स या इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसेमिक लोग होंगे, so you can think of that Americans they are more health conscious, तो वो 100 से जो ही ऊपर जाएगा वो आपको एहसास दिलाना शुरू कर देंगे कि that there are chances that you, if there is a strong family history,
you can go, you can be a patient of diabetes mellitus. So better have a glycemic control right now. So यहाँ पे उन्होंने विंडो जोन ज्यादा रख दिया है because they are more health care sensitive. नंबर 2 डिफरेंस जो है WHO का क्राइटेरिया और ADA का है, वो कहते हैं या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज पे डायग्नोसिस करें या HbA1c पे. Random level does not carry any value because it has got a wider window and it is dependent on your exercise, on your stress, on your diet. So multiple variable factors have got an influence on the sugar level. So they say it's I use this investigation, one should not go except in emergency. For example, if a patient comes in coma, you cannot wait for fasting. Similarly, if a female is pregnant, so pregnancy or emergency cases में random level वो सिर्फ कहते हैं करवा लें. Otherwise, for diagnosis, they don't recommend it. They say postprandial or random plasma glucose के ऊपर diabetes mellitus को diagnose नहीं करना चाहिए. अच्छा, उसमें अभी मैंने कहा था you can think of. So what are the diagnostic criteria then? Remember, as you know, anti-insulin hormone बहुत से होते हैं. Stress में कभी-कभी शुगर बढ़ जाती है. Patient came to emergency after an accident. An accident is emergency. Or after a surgery. और उस वक्त आप जब शुगर लेवल करवाएं, तो that's not a good time. तो उसमें आप चूंकि स्ट्रेस इंड्यूस्ड या एक एथलीट है वो सुबह सुबह रोजाना एक्सरसाइज करके आता है, जिम से आता है, तो उसकी शुगर लेवल तो कम होगी. या रमजान शरीफ में मुस्लिम्स इफ दे आस्क फॉर शुगर लेवल कि जी हम तो सुबह शहरी खा के अब 12 घंटे से फास्टिंग में है, तो वो तो नॉर्मल आदमी भी उस वक्त भूख से मारा जा रहा होता है, उसका फास्टिंग लेवल तो कम आएगा. कहने का मुराद ये है सिर्फ कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे से अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एंड इवन इंटरनेशनल डायबिटिक एसोसिएशन से ये जो WHO इस बेसिस पे डायग्नोस करना ही नहीं चाहिए. So that was the reason I was using word you can think of. The second reason is that diagnosis declare करने के लिए कि that the person is diabetic, one sample is insufficient. Exclude diabetes if 2 samples are lesser than 100 milligram. एक सैंपल 100 से कम आया, आप पेशेंट को कहें जी महीने के बाद फिर ठहर के करवा दें, आप हैं तो नॉर्मल, लेकिन एक दफा और करवा लें. 100 से कम एक सैंपल भी हो तो आप नॉर्मल कह सकते हैं, 2 जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि 2. बट ओनली 1 सैंपल लेसर देन 100 मींस यू आर नॉर्मल. बट इफ इट्स मोर देन 108 ऑन वन ओकेजन, यू शुड नॉट से कि आपको जी शुगर हो गई या 126 से ऊपर है जी आपको शुगर हो गई. No. You have to go for 2 plasma fasting levels or 2 hours after 75 grams of glucose load. ये मिलीग्राम is a wrongly written. M जो है ना यहाँ से डिलीट करते हैं. बहरहाल ग्लूकोज देने के बाद आप टेस्ट करें या नाश्ता करने के बाद या खाने के 1 घंटे के बाद करें, तो वो अगर एक दफा 200 से ऊपर आ गई है या 198 से आ गई, दैट कुड बी अ चांस. और वो उस चांस को दूर करने के लिए आप कहते हैं कि on 2 different occasion fasting plasma glucose or postprandial or random 2 samples or 1 fasting and 1 random. एक fasting 126 से ऊपर हो और एक 198 से ऊपर हो, you can safely place the patient on diabetes and start giving him instructions. Don't immediately jump onto hormones or insulin. Think about it कि इसे क्या देना है. Management is the job of a medical specialist or a dietitian. बहरहाल डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था कि 2 सैंपल्स चाहिए डायबिटीज को डायबिटिक डिक्लेयर करने के लिए, चाहे 2 फास्टिंग 2 डिफरेंट डेज पे हों. आज फास्टिंग करवाइए, कल फिर करवाएं on 2 different occasions. If it is more than that, I have told you that it may be because of stress के थोड़ा, this is a very small window. तो 18 से 126 के दरमियान पेशेंट अगर पहले से करवाया है 115, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया, दोबारा करवाया वो 126 से ऊपर चला गया, तो you cannot say that you are a diabetic person unless you take a proper history of that. So it is 2 occasions, then you declare that the person is diabetic. तो ये exclude diabetes if the sugar level is lesser than 100 milligram. Even on one occasion, you can safely say that you are normal.
don't worry, you don't have a diabetes mellitus. But if you have a family history, keep on getting checked yourself for blood glucose level or plasma glucose level after every 3 months or 6 months. जो भी एज के लिहाज से आप उसे recommend करना चाहिए. Urinary glucose, but before we go to urinary glucose, जब बात कर रहे हैं प्लाज्मा ग्लूकोज की या वीनस प्लाज्मा की, तो ये वीनस और ये ग्लूकोमीटर्स आमतौर पर पेशेंट्स घरों में यूज करते हैं. But the glucometers are not recommended for establishing the diabetes. Management के लिए ठीक है, you can do that because it saves times. You cannot go to laboratory में fasting जाना और फिर घर आके नाश्ता करना. It's a little troublesome job. So once you are diagnosed as you are diabetic, then you use glucometer but don't compare the value of glucometer with the venous plasma values. Reason? ये venous आप हैं, आप vein से ले रहे हैं और vein से लेने के बाद उसे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सीरम या प्लाज्मा है उससे आप टेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे you are taking a blood which is from capillary. Remember, when a person is fasting, तो capillary level पे वैल्यू कम आएगी ग्लूकोमीटर पे when you compare it with the laboratory value. Reason? कैपिलरी पे इंटरेस्ट, ये आप ब्लड ले रहे हैं, इट्स अ होल ब्लड, दैट इज प्लाज्मा. सो एक जो सेल्स हैं, इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज लेस. So when you mix up with the intracellular level plus extracellular level, that means whole blood. तो whole blood भी जब आप कर रहे होते हैं तो that is a joint or value of intracellular as well as extracellular. तो RBCs के अंदर या दूसरे सेल्स के अंदर लेवल कम होता है. So you can say the value is a little lower if you are doing it on fasting. अगर ग्लूकोमीटर यूज कर रहे हैं आप 1 घंटा खाने के बाद, तो कैपिलरी में तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, वीनस ब्लड पे जरा कम वैल्यू होती है. सो ग्लूकोमीटर पे वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा. सो फास्टिंग ले रहे हो तो वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी. रैंडम सैंपल या आफ्टर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या आफ्टर ग्लूकोज ले रहे हैं लोड, तो वो ज्यादा आएगी. इसलिए डू नॉट कंपेयर दिस ग्लूकोमीटर वैल्यू विद द वीनस प्लाज्मा. याद रखें, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस भी ग्लूकोमीटर से डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए डायबिटीज. सेकेंडली, मैनेजमेंट करनी चाहिए, कर सकते हैं आप, वो ट्रबलसम आप उससे बच सकते हैं. यू कैन डू इट एट होम. अब क्या फर्क पड़ता है अगर वैल्यू आज की है तो वो थोड़ी सी फास्टिंग पे अगर 140 की बजाय 135 आ गया तो 35 आ गई नेक्स्ट डे. सो यू आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ ग्लूकोमीटर one day and again after 7 days you are doing on the same glucometer with the same steps. So comparison is between the same. तो अगर पहली दफा कम आई, अगली दफा भी थोड़ी सी कम आएगी, तो मैनेजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लूकोमीटर्स कैन बी यूज्ड. सो ब्लड शुगर एनालिसिस एट होम. उससे जो आगे बात हम कर रहे थे यूरिनरी ग्लूकोज, कितने बजे तक है? I have to be a little fast. यूरिनरी ग्लूकोज याद रखें, रीनल थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है और GFR पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे. अगर ग्लोमेरुलाई ज्यादा काम नहीं कर रहे, किडनी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या डायबिटिक्स में रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है. रीनल थ्रेशोल्ड, आई एम श्योर फ्रॉम द नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी यू माइट बी नोइंग इट इज 180. तो समटाइम्स द पर्सन ब्लड ग्लूकोज 200 होता है लेकिन यूरिन में नहीं आ रहा होता, बिकॉज ऑफ डायबिटिक्स जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, उनका रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है थोड़ा सा. तो अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में 200 से ऊपर भी आए तो यूरिन में ग्लूकोज. सो यूरिनरी ग्लूकोज की तो जा सकती है, बट फॉर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और 5 पॉइंट और 2 पॉइंट ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, GCT कहते हैं, इसे GTT कहते हैं. तो GTT या GCT करवाया कब जाता है? व्हेन देयर इज इम्पेयरमेंट. अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है. और यू मस्ट कंसल्ट द लेबोरेटरी बिफोर यू गेट सेंड योर पेशेंट. तो उसे हिदायत क्या देनी है वो लेबोरेटरी से कंसल्ट करके. आई डोंट वांट टू वेस्ट 5 minutes ऑन दैट. देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस यू हैव टू गिव कि आप ये करें वो करें जो भी.
forget it. HbA1c मैंने पहले बात आपसे कर दिया है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, HbA1c करने के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि बिकॉज दिस इज HbA1c, और Hb आपको पता है कि उसकी अगर आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं तो एक A1 होती है, एक A2 और एक फीटल हीमोग्लोबिन। बट इन फीटल हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली फीटस में ज्यादा होती है, बट इन हीमोग्लोबिन A stands for adult. Hemoglobin adult 97% is A1 and 22.5% is A2. So binding with hemoglobin A1, that too also, ये भी तीन तरह की आ गई, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन एडल्ट 1A 1B 1C, 80% जो है 1C होती है, and this binding of glucose to hemoglobin is a type of protein. Binding of glucose to protein is irreversible. और हीमोग्लोबिन कहाँ होती है? रेड सेल्स की लाइफ साइकिल 120 डेज है। सो इसलिए आजकल हीमोग्लोबिन A1C की एस्टिमेशन फॉर स्क्रीनिंग पॉपुलेशन कम्युनिटी को, अगर आप पॉपुलेशन को स्क्रीन आउट करना चाहते हैं एज अ रिसर्चर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, तो उसमें आप पूरी HbA1c सबका करके आप यू कैन सेफली से कि आप, क्योंकि दैट इज मीन वैल्यू ऑफ लास्ट 120 डेज। तो अगर एक वक्त करवाया है, इस वक्त तो फ्लक्चुएशन हो सकती है शुगर लेवल की, लेकिन बाइंडिंग तो इरिवर्सिबल है, और रेड सेल की लाइफ 120 डेज है। सो सेफली यू कैन से फॉर 100 डेज और 90 डेज फॉर 3 मंथ्स। सो दैट गिव्स यू द मीन प्लाज्मा ग्लूकोज, जो सारे दिन में खाना खाने से, एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेस से फ्लक्चुएट करता रहता है, बट द मीन वैल्यू ऑफ 120 डेज रिमेन सेम, बिकॉज बाइंडिंग जो है इरिवर्सिबल है। तो वो bindings for HbA1c has gained more importance in comparison to even plasma glucose, but that is an expensive test. So sometimes you can ask for fasting plasma glucose if the patient is poor, but HbA1c has gained a lot of importance in screening the population, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, बिकॉज पेशेंट ये भी तो कह सकता है नहीं जी मैंने तो खाया ही कुछ नहीं, मैं तो 12 घंटे से भूखा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ अ ट्रस्ट ऑन पेशेंट, समटाइम्स पेशेंट्स दे वांट के यार मीठा बड़ा पसंद है, तो आज अगर बीवी के सामने या मियाँ या बीवी हस्बैंड के सामने ये सोचे कि आज पता चल गया मुझे डायबिटिक है, तो मुझे तो घर जाके इन्होंने हलवा और बर्फी सब कुछ बंद कर दिया। So they conceal the facts. ये आजकल कोरोना में भी जैसे concealment of facts is there. So patient is a patient, वो conceal कर सकता है, तो उसकी concealment से आप अगर बचना चाहते हैं तो you go for HbA1c. Glycosylated hemoglobin, इसे fast hemoglobin भी कहते हैं, glycated hemoglobin भी कहते हैं, ग्लाइकोहीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। बहरहाल बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज की उनके रिसेप्टर्स के ऊपर, वो चूंकि रिवर्सिबल होती है और 120 या 90 या 100 डेज का मीन प्लाज्मा वैल्यू देती है, सो इट इज अ बेटर इंडिकेटर एंड इज प्रेफरेबल फॉर स्क्रीनिंग, फॉर डायग्नोसिस, फॉर एडिक्वेसी ऑफ थेरेपी इवन, कि आपकी जो थेरेपी है वो कितना एडिक्वेटली काम कर रही है, जो कुछ आप दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं हाइपोग्लाइसेमिक्स टू लोअर डाउन ग्लूकोज लेवल, और इंसुलिन दे रहे हैं, तो उसकी एडिक्वेसी देखने के लिए भी यू कैन से इट इज गुड टेस्ट फॉर मैनेजमेंट इवन। तो डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट, it is preferable over plasma because of the reasons I have already told. एक और टेस्ट है that is called fructosamine test, लेकिन ये fructosamine means दो लफ्ज हैं, फ्रुक्टोज और एमीन। सो अमाइनो एसिड यानी कि एल्ब्यूमिन, बाइंडिंग ऑफ फ्रुक्टोज विद एल्ब्यूमिन और ग्लूकोज विद एल्ब्यूमिन। अच्छा, इसमें और HbA1c में फर्क बहुत वाज़ेह ये है कि ये चूंकि एल्ब्यूमिन को से रिलेटेड है, तो एल्ब्यूमिन के लेवल्स कम ऊपर होने से आप ग्लूकोज की बाइंडिंग कम ज्यादा होगी। सो यू कैन हैव अ फॉल्स इंप्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, ये 2 से 3 हफ्ते की एवरेज वैल्यू देती है, नॉट 3 मंथ्स और 100 डेज। सो HbA1c इज प्रेफरेबल। फ्रुक्टोसामीन को बिल्कुल कोई भी रेकमेंड नहीं करता। क्यों? इसलिए कि एल्ब्यूमिन का लेवल फ्लक्चुएट करते हैं, डायरिया है, वॉमिटिंग है, एल्ब्यूमिन फ्लक्चुएट कर रही है, लिवर डिजीज है, एल्ब्यूमिन कम है।
एल्ब्यूमिन लूज कर रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट, एल्ब्यूमिन कम है, सो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन अगर कम होगा तो बाइंडिंग भी कम होगी, सो यू कैन हैव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ दैट यू आर नॉन डायबिटिक। फ्रुक्टोसामीन बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है आपकी डायग्नोसिस के। सो दिस इज ऑल अबाउट डायग्नोसिस, बट रिमेंबर दो चीजें काम वो कर रही हैं। नंबर वन इज द ग्लूकोज लेवल, नंबर टू इज द इंसुलिन लेवल। इंसुलिन कंट्रोल कर रहा है ग्लूकोज। सो जब व्हेनेवर यू टेक ग्लूकोज और डाइट, व्हेन यू टेक डाइट व्हाट हैपेंस इज डाइट से एब्जॉर्प्शन के बाद देयर इज हाइपरग्लाइसीमिया, एंड दैट हाइपरग्लाइसीमिया promotes insulin secretion from the pancreas. I was telling you that pancreas, I don't want to go into more details. There are beta islets, alpha islets, D and D1 cells, or enterochromaffin cells. They secrete VIPomas is VIP, vasointestinal polypeptide secreting hormone. तो ये endocrines इसमें pancreas जो है, there are approximately 6 types of cells which they, but diabetes से related सिर्फ हम बात करते हैं. We don't go into VIPomas or vasointestinal polypeptides or somatostatin, that is also secreted by D cells. इसी तरह polypeptide secreting cells होते हैं which secretes polypeptide. उसमें भी हम we are not going to all those islets. तो जो जजीरे या islets, beta cells or alpha cells, because these are the two hormones, insulin which lead to lowering of plasma glucose, and glucagon that increases plasma. This is again a mistake. It is the arrow is upward. So insulin lowers plasma glucose. Glucagon, which is secreted by alpha cells of pancreas, it elevates plasma glucose. यहाँ पे ये arrow भी गलत है. It's cut and paste. This is modern way of doing the things, and sometimes mistakes तो खैर writing में भी हो जाती है. So insulin, I don't want to go, ये आपको पहले से पता है कि ये एक दो चेन से बना होता है, 51, 53 अमीनो एसिड. या इस डायग्राम्स को जरा अगर आप गौर करें तो पैनक्रियास से the moment you take diet, GIT releases peptides. एक इंसुलिनोट्रोफिक पेप्टाइड्स कहलाते हैं, एक ग्लाइकोजन पेप्टाइड्स कहलाते हैं. They are incretins भी नहीं कहते. They are secreted once you take diet. और वो that is a stimulus for pancreas beta cells to secrete insulin. In fact, hyperglycemia induce करते हैं. Hyperglycemia जो ही आप डाइट लेते हैं, absorption के पास your level of glucose increases, and that increased level or increased level of glucose or glycemic level, the moment there is high blood sugar, so that is a stimulus for secretion of pancreas. और बीटा आइलेट्स से इंसुलिन रिलीज होती है. वो इंसुलिन क्या करती है, जरा मैं आई जस्ट वांट टू लिटिल इंक्रीज द स्पीड, एंड दैट इज वो इंसुलिन जो काम करती है. ये दो एरो आगे हैं. नंबर वन इज लिवर. लिवर में आप बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज जाती है, वहाँ ग्लाइकोलाइसिस होती है. नंबर वन. नंबर टू, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, सो ग्लाइकोजेनेसिस होती है फॉर स्टोरेज. And number three is lipogenesis. जो बचा कुछ glucose is converted into triglycerides और कुछ incorporate हो जाता है very low density lipoproteins वगैरह में. So lipoproteins में incorporation, synthesis of lipoproteins, synthesis of triglyceride, or you just use the word lipogenesis and glycogenesis. और कुछ glycolysis मतलब liver cell hepatocytes खुद glycolytic या glycolysis की वजह से they need energy. तो जो rest of the glucose it goes into the circulation. तो जो इसका मतलब ये है कि जो लिवर के जब खाना खाने के बाद हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा और लिवर उसे रेगुलेट करने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ इंसुलिन. नंबर टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है वो एडिपोज टिश्यू है. एडिपोज टिश्यू में और दिस मसल्स एंड ब्रेन. ब्रेन की रेगुलेशन में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं अभी बताता हूँ आपको. It's the muscles. In muscles what happens is either they use the glucose or they store it
और वो स्टोरेज फॉर्म ग्लूकोज की मसल्स में ग्लाइकोजन है. सो देयर इज अ ग्लाइकोजन स्टोरेज, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वगैरह बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. बहरहाल मसल्स, लिवर, इनमें ग्लाइकोजेनेसिस होती है और लिवर में लाइपोजेनेसिस होती है. एडिपोज टिश्यू, ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो जाएगा वो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, अब आपको पता है जितना ज्यादा खाना खाएंगे आप, व्हाट विल हैपन, जो एक्स्ट्रा घर में आ जाए चीज तो वो स्टोर में चली जाती है. So the same thing happens with adipose tissue, lipogenesis होगा and glucose is converted into triglyceride and there is adiposity or obesity. तो वो adipose tissues में जाके fat stores बढ़ते हैं. So glucose is, तो वो what will happen? आपने खाना खाया, इंसुलिन रिलीज हुई और उस इंसुलिन ने ग्लूकोज को लोअर डाउन किया with the help of liver, with the help of adipose tissue, with the help of muscle. और when this is lowered, अब ये दूसरा ग्रीन चैनल अगर आप देखें, ग्रीन चैनल तो वैसे ग्रीन चैनल definitely you must be knowing it. It's a good thing. Green channel is always a good. तो रेज ब्लड ग्लूकोज से क्या होगा? पैनक्रियाज अल्फा सेल से ग्लूकोगोन रिलीज करेगा और रिवर्स हो जाएगा ये सारा कुछ, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा. इसी तरह एडिपोज टिश्यू में लाइपोलाइसिस होगा. खैर इन चीजों को छोड़ दें वरना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट. सो these two hormones they regulate and how do they act, ये डिटेल से आप थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लें. एक चीज जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया को लोअर डाउन करती है और जब फास्टिंग हो तो ग्लूकागॉन उसे ऊपर लाने के लिए यूज होता है. तो हाइपोग्लाइसीमिया is a stimulus for release of insulin. Hypoglycemia, it suppresses the release of insulin, rather it promotes the release of glucagon. तो इस तरह ग्लूकोज रेगुलेट हो जाता है. रिमेंबर, अब एक बात हम हाइपरग्लाइसीमिया की करते हुए साथ एक थोड़ी सा वी मस्ट गिव अ लिटिल टच टू द हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया अब शुगर के पेशेंट्स में भी हो जाता है. फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन टेक्स डबल डोज ऑफ इंसुलिन, वो भूल गया, इंसुलिन लगाई, डॉक्टर ने कहा जी 20 यूनिट आपने लगाने हैं सुबह को, वो लगा के भूल जाते हैं. एज ज्यादा होती है, अक्सर मैच्योरिटी ऑन से डायबिटीज, तो वो दोबारा फिर लगा ली, हाँ वो पता लगा जी कोमा में चला गया पेशेंट. ब्रेन की अब बात करने लगते हैं. ब्रेन इज ब्रेन के इज नॉट, इट नाइदर स्टोर्स ग्लूकोज, ना ये मेटाबलाइज करता है. ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है रेगुलेशन में, मेटाबॉलिज्म में और एनीथिंग. नहीं आप बैठिए, नो प्रॉब्लम मैडम. सो रिमेंबर, इट हैज गॉट नथिंग टू डू. हाइपोग्लाइसीमिया दो वजह से हो सकता है. डायबिटीज में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हालांकि हम बात हाइपरग्लाइसीमिया की करें, इंसुलिन की डबल डोज होगी, या पेशेंट हैज गॉट अ ट्यूमर दैट इज इंसुलिनोमा और दैट इज रिलीजिंग मोर इंसुलिन. सो एक्सोजिनस हो इंसुलिन या एंडोजिनस हो, दोनों सूरतों में इंसुलिन ज्यादा हो गई हाइपोग्लाइसीमिया. उसे ढूंढने के लिए कि वेदर इट इज बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट हैज फॉरगॉटन इंसुलिन, 2 दफा ले ली है, या आपने इंसुलिनोमा है या कोई और वजह है. तो हाइपोग्लाइसीमिया को ये देखने के लिए कि ये डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया है सेकेंडरी टू डायबिटीज मेलाइटिस और इट इज हाइपोग्लाइसीमिया फॉर एनी अदर रीजन, सी पेप्टाइड करवाए. अगर आपको इंसुलिन का फार्मूला आता है तो ये मैंने बताया था कि 2 चेन्स होते हैं 51 और 53 अमाइनो एसिड की, और दे आर कनेक्टेड विद 2 अमाइनो एसिड्स. और वो जो 2 अमाइनो एसिड हैं, when there is a proteolysis, pro insulin से इंसुलिन बनता है. इंसुलिन अगर प्रोटियोलाइसिस हो और ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल करे तो वो चेन्स अमाइनो एसिड्स के अलग-अलग हो जाते हैं 51 और 33 की, और 2 अमाइनो एसिड वाला जो मॉलिक्यूल है दैट इज अ सी पेप्टाइड. अगर तो इंसुलिन सिंथेटिक दी है बाहर से, सी पेप्टाइड प्रोटियोलाइसिस नहीं होगा. तो इसका मतलब है अगर एक्सोजिनस है तो देयर विल बी लो सी पेप्टाइड. लेकिन अगर एंडोजिनस है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंसुलिन, तो इंसुलिन ज्यादा होगी इंसुलिनोमा की वजह से, एंडोजिनस.
तो उसमें इंसुलिन ब्रेकडाउन होने से सी पेप्टाइड लेवल बढ़ते हैं. सो हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज ऑफ एंडोजेनस इंसुलिन और एक्सोजेनस वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय सी पेप्टाइड टेस्ट. आगे हम क्लिनिकल फीचर्स, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ये हमने सिर्फ आज डायग्नोस्टिक एंगल्स और डिफरेंट टेस्ट्स पे बात की है. और the things which are remaining is कि clinically कितने types की होती है, clinical features क्या होते हैं, complications of diabetes mellitus क्या होते हैं. Thank you very much for today and see you hopefully tomorrow. Thank you. सर आप